ہم سب تندرست ہیں اور خدا کی حضوری میں موجود ہیں. ہاللویا. آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت. آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور کوشش کریں کہ جو پڑھے لکھے بیٹے یا بیٹیاں ہیں وہ پین اور ڈائری جو ہے وہ ساتھ میں رکھا کریں. جی نکال لیا ہے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت میں آپ سب نے یہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ یہ جو کہانی ہے یہ 10 کوڑیوں کی ہے. یہ کہانی کس کی ہے؟ 10 کوڑیوں کی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا. یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یروشلم کو جاتے ہوئے سامریا اور گلیل کے بیچ یعنی درمیان سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر. کلام مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے بابرکت ہو. آمین. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو 10 کوڑی ہیں اگر آپ نے پرانے عہد نامہ کو پڑھا ہو تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس دور کے اندر کوڑ جس کو لگتا تھا آج تو میڈیکل نے ہو سکتا ہے کہ کوڑ کا علاج نکال لیا ہو لیکن تب جو ہے جب کوڑ کسی کو ہو جاتا تھا تو وہ نا امید اور وہ گھر سے باہر جو ہے وہ نکال دیے جاتے تھے اور ان کو جنگلوں میں اور میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا جس کو کوڑ کی بیماری لگتی تھی. اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اگر کوئی اس کو چھو لیتا تو شریعت کے مطابق وہ بندہ جو چھوتا تھا کسی کوڑی کو وہ ناپاک کہلاتا تھا. اتنی خطرناک بیماری تھی. مطلب ایک بندہ اگر بیمار ہے تو اس کو اگر اس کوڑی کو یعنی کسی نے چھو لیا ہے تو جس نے چھوا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک ہو گیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کو چھو لیتا تھا تو وہ بیماری اس کو بھی جو ہے وہ لگ جاتی تھی. جیسا آپ کو پتا ہے 2019 میں جو ہے وہ کرونا وائرس جیسی وبا آئی تھی اس کا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی کسی کو چھو لیتا تو وہ جو بیماری تھی وہ دوسرے کے اندر چلی جاتی تھی. تو اسی طرح یہ کوڑ کی جو بیماری تھی یہ لا علاج تھی اور جب کسی کو کوڑ ہو جاتا تھا تو لوگ جو ہے وہ نا امید ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے بس اب ہمارا اینڈ ہے. اور بائبل کے مطابق لکھا ہے کہ جب کسی کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا. اتنی خطرناک بیماری گھر سے اس لیے نکال دیا جاتا تھا تاکہ جو گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو یہ کوڑ کی بیماری جو ہے وہ ان کو نہ لگ جائے. تو اتنی خطرناک بیماری ہے. اب یہ جو 10 کوڑی ہیں یہ بھی گھر سے نکالے گئے ہیں. گھر سے کیا کیے گئے ہیں؟ یہ نکال دیے گئے ہیں. یہ گھر سے نکال دیے گئے ہیں. اور کتنے کوڑی ہیں؟ آپ نے کلام کی طرف دھیان لگانا ہے. کتنے کوڑی ہیں؟ 10 کوڑی ہیں. اور شریعت کے مطابق ان کو گھر سے کیا کیا گیا ہے؟ نکال دیا گیا ہے. اور کوڑیوں کو جنگلوں میں یا میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا. اور لکھا ہے کہ کیا ہوا ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہو کہ ایک یسوع ناصری ہے جو لوگوں کو چنگا کرتا ہے, لوگوں کو شفا دیتا ہے, لوگوں کی زندگیوں کے اندر معجزات ہوتے ہیں. انہوں نے سنا ہوگا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک گاؤں میں سے یا ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کو جب پتا چلا تو بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا
इन्होंने दूर खड़े होकर लिखा है कि बुलंद आवाज से पुकारा और पुकार कर क्या कहा है, यस्सु ऐ साहिब हम पर क्या कर, रहम कर, हम पर क्या कर, रहम कर। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड़ी हैं इनके दरमियान और यस्सु मसीह के दरमियान काफी फासला है। क्या है? काफी फासला है। फासले की वजह से कोड़ियों को आवाज को बुलंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आवाज को बुलंद करना पड़ा। लिखा है कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके कहा, ऐ यस्सु ऐ साहिब हम पर क्या कर, रहम कर, हम पर क्या कर, रहम कर। बड़ी जबरदस्त बात है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी बीमारी बहुत बड़ी है तो आपकी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया। आपको लगता है कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, आपको लगता है कि ये बीमारी के अंदर ही अब मैंने गुजर जाना है, आप नाउम्मीद हैं, तो उम्मीद का एक चिराग है और वो यीशु मसीह है। और जितनी बड़ी बीमारी होगी, बाइबल के अंदर कोड मैंने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी थी। ये ऐसी बीमारी थी कि लोग उम्मीदें छोड़ देते थे, कहते थे बस अब जो है हमारा एंड है, और उनको छोड़ दिया जाता था जंगलों में, मैदानों में। अब जब कोड़ियों ने देखा कि हमारी बीमारी जो है वो ला इलाज है, हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, तो बीमारी तो बड़ी है, उसी बीमारी के हिसाब से आवाज भी क्या है, बुलंद है। आवाज क्या है, बुलंद है। इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी बीमारी या जितनी बड़ी आपकी जिंदगी के अंदर आजमाइश है, जितनी बड़ी आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत परेशानी है, खुदा की हजूरी में आपकी आवाज भी उतनी बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा की हजूरी में आपकी आवाज भी क्या होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। कोड़ियों ने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ यस्सु ऐ साहिब हम पर क्या कर, रहम कर। और बीमारी के साथ अगर आप आवाज को बुलंद करते हैं और आवाज के अंदर क्या कहना है कि ऐ यस्सु हम पर रहम कर। आज लोग बीमारियों में हैं, आज लोग तकलीफों में हैं, आज लोग परेशानियों में हैं। उनको लगता है ये बस ऐसे ही अब हमने ऐसे ही चले जाना है। अब क्यों लोग अपनी बीमारियों के अंदर हैं, छोटी सी छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, और लोग जब दूसरों को देखते हैं कि ये सब, उनको लगता है कि शायद ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर एक को ये बीमारी हुई है तो मुझे भी होगी, खैर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों लोग जो है वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारियों के अंदर मुब्तला है? रीजन ये है, पहले नंबर पर वो बुलंद आवाज से पुकारते नहीं और कहते नहीं कि हम पर रहम किया जाए। कभी किसी ने कहा हो कि ऐ खुदावंद यीशु मुझे मेरी इस बीमारी पर रहम कर, कहा हो किसी ने? इसीलिए जो है मैंने कहा बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग जो हैं उनकी ईमान की जो है, उनसे अगर कहा जाए आपका, वो कहेंगे ईमान हमारा बहुत है, बहुत ईमान है। अगर ईमान बहुत है तो फिर क्यों नहीं बीमारियां जा रही? रीजन क्या है? हम पुकारते नहीं, हम कहते नहीं कि ऐ यीशु हम पर क्या कर, ऐ यीशु हम पर क्या कर, रहम कर। कहते ही नहीं। जब कहेंगे नहीं तो कैसे रहम होगा? यीशु मसीह कोड़ियों के पास भी जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह गांव में गए, कोड़ियों ने देखा, वो पता नहीं बेचारे कैसे डरते हुए आए होंगे, और डर डर के दूर से कहा। हो सकता है उन्होंने सोचा कि नजदीक गए तो काम खराब, दूर से ही, बीमारी भी बड़ी है, दूर से बुलंद आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ यीशु ऐ साहिब हम पर क्या कर, रहम कर, हम पर क्या कर, रहम कर। और जब आप रहम की अपील करते हैं तो आपकी हर तरह की बीमारी जाती है, हर तरह की। वो सर दर्द हो, वो नजला हो, वो जुकाम हो, वो शुगर हो, वो कोई भी बीमारी हो, वो जाती है। डिमांड करनी पड़ती है,
जितनी बड़ी बीमारी आपको, अगर बीमारी छोटी है लेकिन आपको लगता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, तो आप बुलंद आवाज से खुदा को पुकारें, कहें कि ऐ यीशु हम पर रहम कर। हालेलुया। कहें कि यीशु हम पर क्या कर, रहम कर। अब शैतान ने जो है लोगों के माइंड को ऐसा सेट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बीमारी का हल ही नहीं बस। हालांकि उस बीमारी का हल मेडिसिन भी है, लेकिन मेडिसिन को छोड़कर उसका सबसे बेहतर और जबरदस्त हल एक ही है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन मसला ये है कि लोग पुकारते नहीं। रहम की डिमांड है। अगर आप रहम के लिए अपील करते हैं तो आपकी बीमारियां जा सकती हैं। अब बाइबल के अंदर अगर आप अब्राहम और सारा की जिंदगी पर देखें तो लिखा है कि वो बूढ़े हो चुके थे। क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। उम्मीद जो है उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब खुदा ने कहा कि मैं जो है तुम्हें औलाद दूंगा, और ऐसी औलाद दूंगा कि उसका कोई शुमार ना होगा, कोई उसे गिन नहीं सकता। बूढ़े हैं, ख्याल आया होगा, बल्कि सारा ने भी कहा, लिखा है कि जब खुदा के फरिश्ते अब्राहम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगले साल, ध्यान से सुनना, लिखा है कि अगले साल अब्राहम को वो कहते हैं अगले साल तेरे बेटा होगा। लिखा है कि सारा जो है वो अपने कहमा में जो है वो इस बात को सुन रही थी और हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? उसे पता था कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अब कैसे कैसे हो सकता है, अब कैसे मैं औलाद को जो है वो पैदा कर सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब्राहम भी जो है वो बूढ़ा हो चुका है, कैसे हो सकता है? अब्राहम 99 वर्ष का है, मैं 90 वर्ष की हो चुकी हूं, कैसे हम तो बूढ़े हो चुके हैं। जब उसने ये उसके ज़हन में सोच आई, उसने ये जब कहा, तो बाइबल के अंदर लिखा है फरिश्ते ने उससे कहा, क्या, ध्यान से सुनना है, क्या खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल है? ये फरिश्ता ने उसको कहा क्या खुदा के नजदीक कोई भी बात नामुमकिन या मुश्किल है जो वो नहीं कर सकता? तो जब आपकी उम्मीदें खत्म होती हैं, जब आप अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों, परेशानियों से ना उम्मीद हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब कोई हल नहीं, लेकिन तभी अगर आप खुदा को पुकारते हैं तो वही आपका हल है। हालेलुया। वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो बड़ी से बड़ी तकलीफ परेशानी हो, जब आपको लगता है कि बस अब एंड हो चुका है, तब खुदा को पुकारें। तब खुदा को क्या करें? पुकारें, और उससे कहें कि खुदावंद हम पर क्या कर, हम पर क्या कर, रहम कर। और जब आप रहम ही नहीं मांगेंगे तो आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा कैसे काम करेगा? एक वो रहम होता है कि बस फर्जी, जो हम कहते हैं कि खुदावंद हम पर रहम कर, और वो हमें भी नहीं पता, हमारी सोचें कहीं और गई होती हैं, हम कह रहे होते हैं खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। लेकिन एक वो रहम होता है जिसके लिए आपके दिल के अंदर जो है वो तड़प हो, प्यास हो, ईमान हो। कोड़ियों के अंदर ये प्यास और लगन और ईमान था, इसलिए वो मैदानों से, जंगलों से निकले, बाहर निकले और उस गांव में आ गए जहां पर यीशु था। और लिखा है कि वो यीशु को बुलंद आवाज से पुकारने लगे। यानी काफी फासला होगा, बीमारी भी बड़ी है, लेकिन वो अपील कर रहे हैं बुलंद आवाज से। उनको पता था कि हमारी बीमारी जो है, या हमारी जो बीमारियां हैं वो चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया। लिखा है कि उन्होंने कहा कि ऐ यीशु, ऐ साहिब हम पर क्या कर, रहम कर। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ठीक है, जाओ और अपने ताई कहनों को दिखाओ। लिखा है कि वो जब जा रहे थे तो जाते जाते ही अपने कोढ़ से वो आजाद हो गए। हालेलुया। जब आप ईमान से, बुलंद आवाज से कहते हैं कि खुदावंद हम पर रहम कर, तो वो आपकी हर मुश्किलात को, हर बीमारी को हल करने की कुदरत रखता है।
हालेलुया। हर बीमारी को, हर मुश्किलात को खुदावंद जो है वो दूर करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। लेकिन डिमांड ये है कि आप पहले उसको पुकारें। आपकी सर दर्द है, कई सालों से आपको प्रॉब्लम है, आपने मेडिसिन जो है वो यूज की, नहीं आप ठीक हो पा रहे, खुदावंद से कहें, खुदावंद यीशु हम पर रहम कर। मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है, जब वो बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं, वो पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, खुदावंद मुझ पर रहम कर, और वो आजाद होते हैं। अब ये हो सकता है कि एक दफा ना भी हो, उसी कहोगे पादरी साहब, एक दफा जो है आपने कह दिया खुदावंद हम पर जो है वो रहम कर, हो सकता है एक दफा वो खुदा आपका टेस्ट ले रहा हो। लेकिन एक जरूर मैं आपसे बात कहूंगा, आप एक दिन करें, 2 दिन करें, या आप 1 महीना करें, जिस बात के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप रहम मांग रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा। अगर आप वाकई ईमान पर जो है वो आप उस पर ईमान रखते हैं कि ये मसला ठीक हो सकता है, वाकई अगर आपका जो है उस पर ईमान है, भरोसा है, तो अक्ल है कि खुदावंद ऐसा कर सकता है, तो आप उसको पुकारें। आप उसको क्या करें? पुकारें। और एक दफा नहीं, बार बार कहें, खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर। एक टाइम ऐसा आएगा। अब कोड़ियों ने, मैं सोचता हूं कभी कभी कि कोड़ियों ने जंगलों के अंदर पता नहीं कितनी दफा खुदा को पुकारा होगा कि खुदावंद कोई तेरा हल कर। उन्होंने भी पता नहीं कितने साल जो है वो मैदानों में, जंगलों में गुजारे होंगे, कितने महीने गुजारे होंगे, और वो खुदा से कहते होंगे कि खुदावंद हमें हम पर रहम कर। जंगलों में कहा होगा, मैदानों में कहा होगा, या जहां पर वो रहते थे वहां पर उन्होंने कहा होगा कि खुदावंद हम पर क्या कर? रहम कर। वो करते होंगे प्रे, क्योंकि उनकी जो बीमारी थी बहुत बड़ी थी, और जब बड़ी प्रॉब्लम होती है लोग तभी खुदा को याद करते हैं, ये भी बात है, पहले खुदा भी नहीं याद होता। तो उन्होंने पता नहीं कितनी दफा कहा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनको पता चला कि यीशु खुदा का बेटा है, जो लोगों को शिफा देता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है। जब उन्होंने ये सुना तो एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने वही तरीका अपनाया होगा जो जंगलों मैदानों में अपनाया होगा, और कहा कि ऐ यीशु हम पर क्या कर? रहम कर। और वो दिन उनका ऐसा था कि उन पर रहम हो गया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब खुदा आप पर रहम करता है। अब यहां पर तो हमें छोटी सी ये कहानी के अंदर ये पता चलता है कि यीशु के पास आते हैं और वो कहते हैं हमें पाक साफ कर। अगर इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो पता नहीं कोड़ी कितने बरसों से या कितने महीनों से जो है वो बेचारे इन बीमारियों के अंदर या इस परेशानी के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहे होंगे, या पता नहीं कितनी दफा उन्होंने जो है वो खुदा की हजूरी में जो है वो रहम की अपील की होगी, लेकिन वो ना उम्मीद नहीं हुए थे। जब आप खुदा को पुकारते हैं हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर, एक दिन मैंने कहा ऐसा जरूर आता है कि जब आप पर रहम होता है। हालेलुया। आपने वो काजी की तमसील तो सुनी होगी, जिसके पास एक औरत आती है और कहती है मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। एक दिन वो आके कही जाता है यार मेरा इंसाफ कर ही ना। हालेलुया। तो आप जब खुदा को पुकारते हैं, मैंने कहा जितनी बड़ी आपकी सिचुएशन, बीमारी, तकलीफ, परेशानी हो, उतनी बुलंद आवाज से खुदा से कहें कि खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर क्या कर? रहम कर। जब आप ऐसा कहेंगे तो एक दिन आपका भी ऐसा आएगा कि खुदा आपको उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन तकलीफों से जब वो आजाद करेगा। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की जिंदगी, पहले लोग खुदा को नहीं पुकारते जब टाइम होता है, लेकिन जब मुसीबत में आते हैं तब फिर वो कहते हैं कि बस खुदावंद आज ही जो है वो रहम करे। ऐसा भी नहीं होता।
पहले जब मुसीबत से पहले जब आपके पास टाइम था, तब आपने खुदा को पुकारा नहीं, उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। जब मुसीबत आई, मुसीबत आते सारी के खुदावंद बस हो नहीं रहम कर। ऐसा हो भी जाता है जब खुदा खुदा देखिए, खुदा की अपनी मर्जी है। जब वो रहम करने पर आए तो 1 मिनट भी नहीं लगता, और जब वो नहीं करता तो फिर सालों भी गुजर जाते हैं, महीनों भी गुजर जाते हैं। ये खुदा पर डिपेंडेड है कि खुदा किस पर रहम करता है या किस पर नहीं करता। लेकिन जब आप उसे पुकारते रहेंगे तो खुदा आप पर रहम करेगा। हालेलुया। जो जन्म का अंधा था, उसने भी उसे पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो भी नाउम्मीद था, लेकिन उसे भी यीशु का पता चला। उसने भी पता नहीं कितनी दफा पुकारा होगा, कितनी दफा खुदा को कहा होगा, लेकिन एक दिन मैंने कहा ऐसा आता है कि जब आप पर फिर रहम होता है। हालेलुया। एक दिन मैंने कहा कि ऐसा जरूर आता है। आप उस जो 38 साल का बीमार था उसको देखें। 38 साल से वो बंदा जो है वो बीमारी के अंदर पड़ा हुआ है, और डेली जो है वो कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए एक उम्मीद ये थी कि जो होज है वहां पर खुदा का फरिश्ता आता है, जब पानी को हिलाता है, जो पहले गिरेगा वो क्या पाएगा, शिफा पाएगा। 38 बरस के जो बीमार था, उसने भी पता नहीं कितनी कितनी दफा उसने कोशिश की होगी, प्रे की होगी, 1 दफा 2 दफा 3री दफा, खुदावन आज जो है आज जब खुदा का फरिश्ता आए तो खुदावन पहले मैं इस पे जो है वो डुबकी लगाऊंगा। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसकी जो ईमान की कैफियत है या उसके अंदर जो जज्बा है वो जारी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिर आप बिल्कुल टूट जाते हैं, आप हिम्मत छोड़ देते हैं, तब भी खुदा आपकी मदद करता है। आप पुकारते रहते हैं, एक मोड़ ऐसा भी आ जाता है, फिर आप कहते हैं बस खुदावन। ये 38 बरस का जो बीमार था, इसका भी यही था। वो अब हार चुका था। कहता है खुदावन मैं तो कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे पहले जो है वो कोई होज में चला जाता है तो वो शिफा पा जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी इस बात को जब सुना तो यीशु मसीह ने उसे कहा, जा अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया। तो खुदा, मैंने कहा कि एक दिन आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा आता है कि खुदा आप पर रहम करता है, लेकिन रहम तब करता है जब आप रहम की अपील करते हैं। अगर आप रहम की अपील ही नहीं करते तो आप फिर कैसे आप पर वो करेगा। आप कहीं उससे बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी बीमारियां, बड़ी ऐसी चीजें हैं अगर जिंदगियों में, तो बुलंद आवाज से पुकारें। और शैतान ने इंसानों पर कंट्रोल किया है ताकि वो इस बात को कह ना सके। 1 दिन 2 दिन 3रे दिन शैतान पकड़ लेता है, बस 2 दिन बहुत है। हो सकता है कि 3रे दिन आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने कुछ बड़ा करना हो, तभी शैतान पकड़ लेता है बस। तो ऐसा जो है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर अपने रहम को जारी करे, बड़ी बीमारियां जाए तो उसे पुकारें। और जितनी बड़ी बीमारी, जितनी बड़ी नाउम्मीदी है, उतनी बुलंद आवाज से उसे कहें खुदा हम पर क्या कर। जब आप उसे रहम की अपील उससे करेंगे तो वो आप पर रहम करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे इस काम को से बड़ी बरकत दे।